Hi, I'm Arun Singh. We're talking Single Papa, which is streaming on Netflix. Joining me, the actors of the series, Manoj Pawar, Prajakta Kohli, Aisha Raza. Very warm welcome on NDTV. Thank you. It's a very interesting series. It talks about a man who has a hot burning desire to become a father. He eventually does, and it explores single parenthood in a way. But I want to talk about the opening theme, which is he has a conflict with his partner about having a kid, and which is a reality of our times today. A lot of couples have this conflict, and let's say if we go back 10 to 15 years back, this was a norm that if you're getting married, you have to have kids. Right. That was the norm. What do you think has brought this change where couples are now starting to have this conversation that do we want kids or not? I think it was, initially just social pressure and what you understood that you had to do, that get married, have a baby. It was just the norm of life because that's what your grandparents did or parents did. But I think now people are thinking more practically. I think it's a very expensive world. It's a difficult world. It's a polluted world. A lot of my friends are saying, why would we want to bring children into this kind of strife-ridden world today? We're shooting this in Delhi, by the way. Lovely that she mentions pollution. Yeah, so again, if you're having a child in this kind of air quality, why would you do that? Secondly, it's really expensive. Thirdly, I think people will have children if they really want to, as opposed to whether their society or their parents want them to. A lot of them say, look, we want to earn, we want to travel, we want to enjoy our life in a different way, and we don't really have burning desires to be parents. And I think that's a very valid choice. But as is having children, if you really want to, then I think that's extremely valid as well. In 2025, would you also? I would always want to have children. Yes, would? I would. Yes, I've always wanted a kid, and I mean one, and I was done. And I thought I'd want 4 or something, but the first time I was like, listen, I'm done. So yeah, it's tough. It's a tough world, and Bombay being, it's not easy. But I still would want kids. Yeah. Manoj sir? हाँ मतलब पहले तो What do you think ये शिफ्ट क्यों है आ रहा है? नहीं शिफ्ट है अच्छी बात है ये आना भी चाहिए क्योंकि क्या है कि वो अब ज़माना नहीं है कि जॉइंट फैमिली है 8-10 लोग घर में खाली बैठे हुए हैं दादाजी भी खाली बैठे हैं दादी भी खाली बैठी है ताऊ जी भी हैं वो पल जाएंगे वो जो कॉन्सेप्ट पल जाएंगे अभी ये जनरेशन को समझ में आ रहा है कि पेरेंटिंग भाई कोई वो नहीं है एक रिस्पॉन्सिबल काम है ये और मेरा तो ये वहाँ तक मानना है कि जैसे कि आरटीओ में लाइसेंस मिलता है आपको ड्राइविंग का अथॉरिटी होनी चाहिए इंटरव्यू होना चाहिए और लाइसेंस इसके इस लायक हो कि आप नया एक जीवन ला रहे हो आप खुद इस लायक हुए हो अभी खुद मैच्योर्ड हुए हो क्या और लाइसेंस मिले उसके बाद ही आपको अलाउड होना चाहिए कि हाँ आप पैदा कर सकते हो आप लवली सर आपने काफी जिंदगी देखी है यू हैड रिच एक्सपीरियंसेस कोई यंग इंसान अगर अभी सुन रहा है आप क्या चेक्स मानेंगे कि उनको ध्यान में रखने चाहिए बिफोर दे प्लान अ किड भाई दोनों की पेरेंटिंग की एक तो ट्रेनिंग होनी चाहिए एक क्रैश कोर्स होना चाहिए जो आपको करना पड़ेगा और उसके पहले एक जो है ट्रेनिंग आपकी जो मैरिज है वो खुद आप कितने मैच्योर्ड हो वो स्टेबल हुई है कि नहीं हुई है 1 साल 1.5 साल लोगों को 20-20 साल लग जाते हैं एक दूसरे को समझने के लिए और रिलेशनशिप जो है कोई भी हो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज हो एक इंसान के साथ रहना दोनों के लिए मेरे हिसाब से कम 7 से 8 साल लगते हैं उसको पकने के अंदर जहां आपको चीज़ें समझ में आती हैं और जहां आपको एडजस्ट करने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं और वो भी तब जब आपके अंदर उतना पेशेंस हो कि हाँ एक चीज है कि हम कमिटेड हैं आपस में अंडरस्टैंडिंग है पहला हो गया कि क्रैश कोर्स अबाउट हैविंग बेबीज सेकंड इज आपसी अंडरस्टैंडिंग व्हाट वुड बी द थर्ड चेक दे शुड और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंशियल कैपेसिटी इन दिस डे एंड एज हाँ इस उम्र के अंदर जहाँ इतना और स्पेशली सिटीज लाइक मुंबई एंड यहाँ पे इट्स सो एक्सपेंसिव हमारे देश के अंदर तो कोई ऐसी एजुकेशन फ्री मिल नहीं रही कि आप इनकम टैक्स पे ही हैं आपने इतने करोड़ रुपए टैक्स दिया है तो आपकी बच्चे का एजुकेशन या आपके क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी मेडिकल या क्वालिटी आपका ओल्ड एज का कुछ मिलेगा आपको ही करना है ना तो पहले आप देख लीजिए पहले अपनी हसरतें पूरी कर लीजिए है ना कि अपने आप को मार के किसी और को जीवन देने का तो वो ना उसके लायक रहोगे ना अपने लायक रहोगे very interesting Prajakta you also got recently married I did congratulations yes so did I congratulations what is your perspective on this I'm asking this because you're talking about single papa and parenthood I am 100% on board with this honestly और पता है पिछले और ये एक अजीब सी I'm sure you also go through this अजीब सी एक्सपेक्टेशन ना सॉलिडिफाई हो जाती है कि फिर आप अपने पार्टनर के साथ पता नहीं जितने साल रहे हो पर जैसे ही शादी होती है ना तो ये वाली एक्सपेक्टेशन बड़ी
वो हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है कि हाँ ये तो है ही. आई ऑल्सो फील वेरी प्राउड टू बी फ्रॉम अ जनरेशन हु आर सो अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, यू नो, कि जिनको ये है कि भैया नहीं हुए हम सेटल जॉब इस पे, कि हम कर रहे हैं कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं. अब जैसे मेरी लाइफ पे ही ले लो, मतलब माय हस्बैंड प्रशांत एंड आई, हम 13 साल से साथ थे. एंड इट्स नॉट लाइक एवर हमें कमिटमेंट का इशू था कि पता नहीं होगी शादी तो हमें तो शुरुआत से ही पता था कि शादी तो करनी है, पर 13 साल लगे जैसे सर ने कहा टू रीच दैट पॉइंट, झेल पाएंगे नहीं पाएंगे एक दूसरे को. आई रिमेम्बर हैविंग अ वेरी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद माई पार्टनर वेयर आई थिंक उस टाइम पे 11 साल हुए थे. उस टाइम पे हमने एक रियलिटी चेक टाइप करा था कि देख मेरी लाइफ ऐसे होने वाली है. मैंने कहा देख मेरी लाइफ ऐसे होने वाली है. तो हमने वो टाइम लेके डिसाइड किया था कि चलो ओके ठीक है, अब शायद एंगेजमेंट की सोच सकते हैं कि अगला स्टेप शायद ले सकते हैं. एंड आई थिंक द यंगर पीपल टुडे आर वेरी अवेयर ऑफ दीज रियलिटीज. वी हैव लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वी हैव लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वी हैव लर्न फ्रॉम आवर सोसाइटी आसपास. द इंटरनेट हैज प्लेड अ ह्यूज रोल क्योंकि वहाँ पे लोग बड़े खुल के ये बातें कर रहे हैं. Got it. And I think one common thing which connects all of you is great comedy timing. All of you are known for your comedy on different platforms and also in different ways. And this is what we see in Single Papa as well. All of you have those quirks, those elements which will make, audience laugh. I want to do a tiny crash course on comedy. What is one hack that you guys have? Because I've heard this from every actor. This is the toughest thing to do. Comedy इतनी आसान नहीं है. क्या हैक है? आप क्या ऐसा सही कर रहे हैं जो आप कॉमेडी के लिए जाने भी जा रहे हैं, और whatever you are touching when it comes to comedy is working for you guys? Can we start with I you? think it's reflex. I don't know. I feel it's reflex. Quick response. You can't really get it's timing, right? तो timing का मुझे तो यही लगता है कि timing आप सिखा नहीं सकते. I mean बहुत सारी acting या बहुत सारे craft सीखे जा सकते हैं. I think rhythm is another one. Like you can try and be the best dancer, but there are people who can dance for 20 years and they still won't reach a certain level. But एक बच्चा है, उसके अंदर inherent rhythm है, inherent grace है, वो उठ जाएगा, 4 स्टेप सिखाओगे उसके अंदर से आ जाएगा. तो थोड़ा तो I would feel कि कुछ comic actors ऐसे हैं जिसमें inbuilt होता है. But I think comedy is about reflex, quick response. Don't take so much time. You know he'll throw something at you, you throw it back, you throw it. It's just that for me. Sir, what about you? मुझे लगता है कि ट्राई नॉट टू डू कॉमेडी. That is also there. Just if you have a situation, Play the situation. and Don't play the because कोई भी जो अगर केले के छिलके के स्लिप होता है ना, वो खुद चाहता है ना कोई दूसरा हंसना चाहता है, बट हो जाता है, वो हंसी छूट जाती है, सो व्हाट इज जो मुझे समझ में आता है कि हम जो उसको करने की कोशिश करने लग जाते हैं ना, या ये बीमारी ऐसा स्टेज पे बहुत होती है. एक या दो ऑडियंस, एक जो दो शोज हमने किए, अब उसके बाद क्या हुआ कि लाफ्टर्स पता चल गए. नाउ व्हाट an actor does is he tries to take a pause. एक अब ये तो मेरा वही वो खत्म कर देता है उसको. तो इट्स अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज टू बी, आपको 100 शो करने हैं, बट टू डू इट इन अ वे दैट इट्स हैपनिंग नाउ. उस वक्त the spontaneity of it. So I think the anticipation actually kills. Anticipation, And that's the right comedy word. का बहुत बड़ा हिस्सा है, whether you're doing fast, exaggerated, slapstick, anything, honesty. You have to be truthful with what you're doing. You can't फर्जी करोगे ना comedy या दिखाने के लिए करोगे तो it will fall flat 100%. But if I'm in a situation and I'm supposed to scream really loudly, but if I'm not feeling it, the audience will know it's fake. What is your hack, Prajakta? Hack, I mean, I honestly think that this is also the first time I'm doing like a comedy kind of show outside of what my native YouTube. But when I say you do comedy, I'm also talking about several YouTube videos that you've Yeah. done. This skits. I think for me, putting your guard down and not holding it too close to you could be a way to go about it. मतलब इफ देयर इज अ सीन, जैसे मुझे कितने सारे सीन जब हम भी शूट कर रहे थे और मुझे ऐसे था कि मेरी ये लाइन बहुत फनी है यार, लेकिन मेरी वो लाइन तब तक फनी नहीं होगी जब तक मम्मी या पापा का वो रिएक्शन उनसे सही से नहीं आएगा, या जब तक उनका सही से नहीं आता मेरा जोक लैंड नहीं होगा. सो आई थिंक इट्स वेरी कोलैबोरेटिव. And in Single Papa, how much was it improv and how much? No, I think the writing was very strong, and I think they were very clear. All our directors, Writing Hitesh, was very Neeraj, strong, and Shashank. they were very open. Open as Director, well, they were very open for improvisation. Yeah. And I would also want to talk about another Netflix title, which is a badass of Bollywood. कमाल का आपका उसमें काम था, और उसमें मुझे लगता है the way you shifted from comedy to emotional was also a masterclass in its own. What is one memory that you hold very close to your heart from that series?
Anything that stayed with you even after you've done? आई मीन क्या लाइक मेरे को ये जो मुझे लगता है कि वो आर्यन के साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके मेरी थोड़ा सा बहस भी होती थी, बिकॉज आई वॉज लिटिल थोड़ा सीनियर हूँ तो वो मेरी सुन भी लेता था, बट आई वॉज लाइक कि एक आदमी इतना रूड कैसे हो सकता है, एक एल्डरली वुमेन है उसको कह रहे हैं तू कहाँ घूम रही है पार्टी में, या गाली बक रहा है। बट वो मुझे मोमेंट्स याद होते हैं जब मैं उसको देखता था वो, बट ही वॉज वेरी वेरी श्योर अबाउट इट कि नहीं सर आप करो, बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक बार तो उसने बोला आप गाली आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। सुनो, एंड जब आने के बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला और मैंने भी देखा तो आई सेड कि यार वो जो मोमेंट्स थे जो आई वॉज रॉन्ग, उसका एक 25 साल के लड़के का विजन एंड द कॉन्सेप्ट जिसको लेके वो चल रहा था, ही वॉज वेरी क्लियर। तो मुझे लगा कि थोड़ा जैसे एज के साथ बंद होते हैं ना, हमको थोड़ा खुला रहना चाहिए। लेट्स बी ओपन टू लेट्स की अगर अपने को यंग रहना है ना, और कंटेम्पररी रहना है, क्योंकि ये जो अभी जो जनरेशन है आप लोग जो है दे आर वेरी वेरी मतलब एक्सपोजर कमाल का है और फुल ऑफ न्यू आइडियाज। तो आई वाज, और मुझे मेरे दिमाग में ये यार 25 साल का लड़का क्या करेगा, बट सी पहला काम के हिसाब से व्हाट ही हैज डन, और बहुत क्लैरिटी है कि मुझे कोई आर्ट फार्ट नहीं, मैं कमर्शियल ढम एंटरटेनिंग फनी ये चाहिए। Love that. Deliver हुआ भी। Yeah, and love that how everybody had their own takeaway from that series. I ended up calling it Badass. It's actually Bads of Bollywood, but it turns out to be something else for those who haven't watched. But now we'll close this chat. I wish this kept going, but now we sadly have to close this. But we'll close it with a segment which is called Papa Kehte Hain. These are stereotypical dialogues that dads say, but they are incomplete. So you complete, okay, based on what you've heard from your dad or what you think stereotypically they do. First is हमारे ज़माने में। मेरे बेचारे पापा ऐसा कुछ नहीं कहते थे। ही वॉज वेरी लाइक नॉट एट ऑल हमारे ज़माने में पर्सन। आई एम सॉरी बट आई कांट कंट्रीब्यूट यू से। हमारे ज़माने में स्टीरियोटिपिकली जो भी हमारे ज़माने में तो हम 15 किलोमीटर बिना चप्पल के धूप में जाते थे। हाँ, दैट माय डैड वुडंट से इट बट मोस्ट डैड The struggles, yeah. तुम Struggle. यहाँ एसी क्लासरूम में पूरे नंबर ला रहे हो। हाँ, What about you, sir? Or something that you've used, you are a dad yourself. हाँ, हमारे ज़माने में तो मतलब अब ऐसा मेरे फादर का ही वॉज लाइक कहना चाहिए पार्टीशन के वो थे, बहुत हार्डशिप से वो क्योंकि सब कुछ गवा दिया था, बिल्कुल सब कुछ छोड़ के आए थे। तो उनका एक बड़ा एक टिपिकल था कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये थ्योरी बन गई थी उनकी। सो वो मेरे को चाहते थे कि कोई हुनर सीख ले, तो खोल अगर तू काम सीख लेगा ना बेटा तो तू एक्टिंग भी करने जा रहा है ना, अगर नहीं चला तो तेरे बैग में पेचकस प्लास रहेगा ना, गाड़ी ठीक करके 2 रोटी कमा लेगा। आई सेड मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, आप बोल रहे पेचकस प्लास लेके आए। तो उनका इंसिस्टेंस ये था कि सब कुछ आपका चोरी हो सकता है, बट द टैलेंट यू हैव, स्किल जो है एक्चुअली आपके हाथ में कारीगर वो उन्होंने वो आपसे कोई नहीं सीख सकता। लाइफ एडवाइस 101। ज्यादा फोन यूज करने से। हाँ, फादर नहीं, ये बोलते ही नहीं थे बेचारे। हर चीज पे ना कुछ भी हो जाए, मेरा ये पेट खराब है तो ज्यादा फोन यूज ये नहीं होगा, ज्यादा फोन यूज करेंगे। अभी मैंने कहा you have to be quick on the uptake. I am not at all quick on the uptake. Seriously, very bad. These are also things that you see around you. True. I'm just not. Yeah. Characters we've loved. Sir, have you used this? ज्यादा फोन यूज करने? नहीं मेरे हमारे टाइम पे तो फोन था ही नहीं। यूज इट, मैं अभी भी वो रख दे, Don't let it use you. हाँ, उसके गुलाम मत बनो यार, यूज करो। टेक्नोलॉजी यूज करना अच्छी बात आई है तो भाई, बट आप देखो मेरे साथ में लोधा की बिल्डिंग बन रही है, उन बेचारे मजदूरों के साथ मैं इतना कि यार सुबह 6 बजे से रात के 1-1 बजे तक दर, और सब जब निकलते हैं चाय पीने के लिए पटरी पे बैठते हैं, सब मैंने कहा इनसे क्या हमदर्दी रखूं। ये सब एडिक्टेड हो गए यार। और कंपोजिशंस देखो, उधर मेरे साथ में एक ब्लिंकेट वालों ने गोदाम लिया है, अब 40 मोटरसाइकिल खड़ी हैं
और 40 डिफरेंट पोस्टर है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, लेकिन सब विद मोबाइल। आपको आईफोन पिंकी फिंगर बारे में पता है? नहीं, मुझे नहीं। सो अब सब जनरेशन जो हम यूज करते हैं यूं रख के फोन, हाँ, तो सबकी पिंकी फिंगर में डेंट आ गया हुआ है। आई हैव दिस डेंट, शी हैज दैट डेंट, देयर इज लाइक अ गुड, ये किस तरह से हम जो पकड़ते ये हैं, पकड़ते हम ऐसे है ना फोन हमेशा। या ये rest ओ, करता है, ये रेस्ट यहाँ करता है, ओ। this is उस fun. वजह I से didn't know देयर that. इज दिस डेंट एंड इट्स कॉल्ड आईफोन पिंकी अब फिंगर। देखो जो आज से जो है 20 साल evolution में, हाँ। एवोल्यूशन में ये उंगली जो है वो डेंट के साथ ही डेंट के बनेगी। साथ ही बनेगी। हाँ, कि सीधा खांचे में आ जाए। आई मीन तब शायद कोई और डिवाइस होगा, Correct. which I think. But lovely conversation with you Thank guys. you, Thank you Anu. very Thank you very much. much, And yes. absolutely loved watching Single Papa. I've had the privilege to watch the preview of it, or rather the premiere. But thank you very much. I Thank you so loved much. it. Actually sad that we are such huge fans. Yes, we That's love your so work kind as of you. well. Like coming Yes, from you wonderful. guys is very sweet. मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन मेरे मैं को सर आपको बताऊंगा। मैंने इंटरव्यू में मुझे Don't बहुत you do मजा dad आया। ones? Because Don't it you was do like- dad Yes, things? yes, That's yes. what I'm saying. I He used does to do a lot of stuff. dad, You do a little dad. इसीलिए तो मैं कह रही हूँ dad. Yeah, yeah. हाँ. ऐसे ही बड़ा पंजाबी actor father. भी- Yes. हाँ, see, मैंने कहा ना, मुझे याद आ जाएगा। इतनी भी मेमोरी खराब है। binge watching. हाँ, इसी का That's पंजाबी फादर मुझे very याद आ sweet. गया, मैंने कहा देखा That's हुआ है। very sweet. Thank you very Yeah. much. Thank you. It was lovely talking to you guys. This is Thank Arun you, Singh thank you, signing Arun. off for NDTV.